بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلیو وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پھر مجھے یہ شکایت تھی کہ وقت بے وقت باہر نکل جاتی تھی۔ وہ آوارہ گردی نہیں کرتی تھی، اپنے گھر یا کسی اور کے گھر چلی جاتی تھی۔ اکثر یوں ہوتا تھا کہ میں تھکا ماندہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا بیوی غائب ہے۔ کبھی اپنے ماں باپ کے ہاں جا بیٹھتی اور کبھی محلے میں کسی کے گھر۔ میرے والد صاحب بھی اس کی اس عادت کو معیوب سمجھتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی تربیت میں خود کروں گا۔ اگر ماں نے اس کی تربیت کی تو بچہ ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گا۔ اس شخص کے سارے بیان سے جو خاصا لمبا تھا، ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ طلاق اس اکیلے نے نہیں دی تھی، بلکہ اس کے باپ اور پھر اس کی ماں کا عمل دخل تھا۔ طلاق کے بعد اس کے چال چلن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے چال چلن کی میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی دوسری شادی سے کچھ پہلے میرے کانوں میں ایسی باتیں پہنچی تھیں جیسے اس نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ اس کا باپ ریٹائر ہو کر مر بھی چکا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ اوچھی قسم کا نوجوان تھا۔ اگر میری اس سابقہ بیوی کے ساتھ اس نے دوستانہ کر ہی لیا تھا تو میں حیران ہوں کہ اس نے اس اوچھے آدمی کو کس طرح قبول کر لیا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ شخص اب تک میری سابقہ بیوی سے ملتا رہا ہے۔ ذرا میری اس بات پر غور کیجیے گا صاحب، میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ میں اپنی طرف سے مرحومہ پر کوئی الزام عائد نہیں کر رہا، نہ کروں گا، کیونکہ میں نے اسے کسی کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کوئی نازیبا حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اتنا غلیظ الزام عائد کر دیا جائے۔ یہ شخص صحیح معنوں میں مومن تھا، اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھیں، میں اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ سابق انسپکٹر فرانسس کی بھی یہی رائے تھی۔ اس شخص سے ہم جھوٹ کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسے ہم نے تفتیش سے فارغ کر دیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، ہمارا سارا دن وہیں گل ہو گیا تھا۔ اب ہم نے جسے شامل تفتیش کرنا تھا وہ یہ شخص تھا جس کے مقتولہ کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس کا نام ایوب بتایا گیا تھا، چونکہ وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا اور مشہور ذمہ دار بھی تھا، اس لیے ایس ایچ او اسے جانتا تھا۔ میں نے اور فرانسس نے آپس میں بات کر کے طے کیا کہ رات ضائع نہ کی جائے۔ اس شخص کو ساتھ ہیڈ کوارٹر لے چلتے ہیں اور آدھی رات کے لگ بھگ تفتیش شروع کریں گے۔ فرانسس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے قاتل یہی شخص ایوب ہی ہو۔ میں نے جب فرانسس کے اس شک پر غور کیا تو مجھے بھی یہی خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ مقتولہ نے اس سے قطع تعلق کر کے دلی کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا، یا دوسری وجہ یہ کہ مقتولہ اسے بلیک میل کرتی ہوگی۔ یہ تو تفتیش میں ہی معلوم ہونا تھا کہ اس شخص کا رویہ کیا ہوگا اور راز کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے ایس ایچ او سے کہا کہ وہ ایوب کو بلوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ تصویر اور 2 رکے۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل کے ساتھ ایک خوبرو جوان آدمی ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ، فرانسس کے ساتھ اور ایس ایچ او کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر ہماری خیر خیریت پوچھی۔ ہم نے اسے بٹھایا تو اس نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ وہ خوش شکل اور خوش طبیعت آدمی تھا۔ آپ کی دوست قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ کون سی دوست؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میری کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں۔ میں نے مقتولہ کا نام لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں۔ آپ حکم کریں کہ آپ کو کس طرح کا تعاون چاہیے، اس نے کہا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن یوں نہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا اور کوئی تعلق تھا۔ فرانسس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فرانسس نے اسے کہا۔ ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں، اس نے کہا، یا میں صبح سویرے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق لے جا رہے ہیں
और हमें उसकी सहूलत की कोई परवाह नहीं। मैं फिर घर इतला दे आऊँ, उसने कहा। आपके घर इतला पहुँच जाएगी, मैंने कहा और एसएचओ से कहा, आप ज़रा इनके घर बता देना कि ये साहब हमारे साथ दिल्ली चले गए हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। वो पसो पेश करता रहा और हमने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर जीप में जा बिठाया। मैं उसके पहलू में बैठ गया और सब इंस्पेक्टर फ्रांसिस स्टीयरिंग पर बैठा और उसने जीप चला दी। अयूब कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था। उसने एहतजाज भी किया, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दिलासा देने के सिवा और कुछ भी ना कहा। हम दिल्ली अपने हेडक्वार्टर में पहुंचे और अयूब को एक हेड कांस्टेबल के हवाले करके अपने अपने घर चले गए। हमने तय कर लिया था कि रात 12 बजे वापस आएंगे। अगर ये शख्स शाहदरा थाने में ही मान लेता कि मकतूला के साथ इसकी दोस्ती थी तो हम शायद वहीं उससे पूछताछ करके इसे घर भेज देते, लेकिन वो बड़ी दिलेरी से इनकार कर रहा था और उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमें बेवकूफ़ बना रहा हो या जैसे उसे ये घुमंड था कि हम उस पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। उसका शुमार बड़े ज़िम्मेदारों में होता था। मैं और फ्रांसिस रात 12 बजे अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गए और अयूब को तफ्तीश वाले कमरे में ले गए। यहाँ से तुम भाग नहीं सकते अयूब, मैंने कहा। जब तक सच नहीं बोलोगे हमसे जान नहीं छुड़ा सकोगे। एक बात बताओ अयूब, फ्रांसिस ने पूछा, तुम क्यों इनकार करते हो? मान क्यों नहीं लेते कि मकतूला के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? वह ऐसा ढीठ आदमी था कि मानता ही नहीं था। ये शक वाली तो कोई बात ही नहीं थी। हमें बहुत से आदमी बल्कि मकतूला की अपनी माँ बता चुकी थी कि अयूब की मकतूला के साथ दोस्ती थी। क्या हम तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलवा लें? मैंने हवा में तीर चलाते हुए कहा। वो तो फ़ौरन बता देगी कि तुमने मकतूला के साथ ताल्लुकात गांठ रखे थे। मैंने ये बात इस ख्याल से कही थी कि जहाँ बहुत से लोग अयूब और मकतूला के ताल्लुकात की बातें करते थे वहाँ अयूब की बीवी को लाजमन इल्म होगा, और अगर उसे इल्म था तो वो यकीनन परेशान होगी। अयूब का चेहरा बता रहा था कि मेरी इस धमकी का उस पर असर हुआ है। छुपाने वाली कोई बात नहीं साहब, उसने कहा। वो हमारी रिश्तेदार थी, इसलिए मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था और कभी वो भी हमारे यहाँ आ जाती थी। लेकिन आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, ये आपको गलत इतला दी गई है। तुम उसकी शादी के बाद भी दिल्ली उसे मिलने आते रहे हो, मैंने उसे कहा। और अब मैं तुम्हें असल बात बता दूं, फ्रांसिस ने कहा। उसने तुम्हें अपने घर आने से मना कर दिया था, लेकिन तुम उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ना नहीं चाहते थे। तुमने यूं इंतकाम लिया कि उसके घर जाकर उसे गोली मार दी। अयूब ने तो तड़पना और उछलना कूदना शुरू कर दिया। वो कस्में खा रहा था कि ऐसी बात नहीं। फिर तुमने उसे गोली क्यों मारी? ये मैंने उस पर मज़ीद दबाव डालने के लिए कहा। अब तुम घर नहीं जा सकोगे, फ्रांसिस ने कहा। वो तो रोने पर आ गया। अब तो वो हाथ जोड़ता और कहता था कि वो कातिल नहीं और उसने कभी ऐसी बात सोची भी नहीं थी और ऐसी बात सोचने की कोई वजह भी नहीं थी। फिर क्यों नहीं मानते कि मकतूला के साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे? मैंने पूछा और कहा, हमने थाने से तुम्हारी रिपोर्ट ली है। तुम शरीफ आदमी नहीं। वो चुप हो गया और उसने सर झुका लिया जैसे कुछ सोच रहा हो। हमने उसे सोचने का मौका दिया। मैं मर्द हूँ और मैं घटिया मर्द नहीं हूँ, उसने कहा। मैं इसलिए ताल्लुकात की बात अपनी ज़बान पर नहीं लाता था कि वो बेचारी बदनाम ना हो। उसके साथ मेरी ऐसी ही दोस्ती थी जैसी आप कह रहे हैं। ये भी ठीक है कि मैं दिल्ली उसके पास आया करता था। क्या उसके खामद को मालूम था? फ्रांसिस ने पूछा। मैं कुछ कह नहीं सकता, उसने जवाब दिया। अगर उसके खामद को पता चल जाता तो वो अपनी बीवी के साथ ज़रूर बात करता, उसे डांटता, धमकियां देता और बाज़ पुरस करता। अगर ऐसा होता तो उसकी बीवी मुझे ज़रूर बताती। और याद करो, मैंने कहा, उसके खामद ने तुम दोनों को कहीं देखा होगा। वो तुम्हारा तो कुछ ना बिगाड़ सका। उसने अपनी बीवी को गोली मार दी। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके खामद ने हमें कभी नहीं देखा था, अयूब ने कहा। हमारी मुलाकात इतनी खुफिया होती थी कि सिवाय खुदा के किसी को पता नहीं चलता था। मेरे जहन में एक शक और आ गया। हमने मान लिया कि तुमने उसे कत्ल नहीं किया, मैंने हंसते हुए कहा। यह खौफ दिल से उतार दो कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं वैसे ही दोस्तों की तरह पूछ रहा हूँ। तुम शायद इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सच्ची बात बताऊं साहब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता था, बल्कि वो कभी कभी कहा करती थी कि अब ये दोस्ती ख़त्म हो जाए तो अच्छा है।
یہ وہ اس لیے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا، اس کا دوستی توڑنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا۔ وہ جو میں سچی بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ وہ میری بلیک میلنگ سے ڈرتی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسی دھمکی نہیں دی تھی۔ تمہارے پاس بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے کہا۔ ایک بار وہ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا بیٹھی تھی۔ ایک تو یہ فوٹو اور اس کا نیگیٹو میرے پاس ہے، اور اس کے 2 رکے بھی میرے پاس ہیں جو اس نے مجھے میری ایک نوکرانی کے ہاتھ بھیجے تھے۔ اصل بات تو وہ بتا ہی چکا تھا۔ اب ہم اس سے جو کچھ بھی پوچھتے تھے یا جرح کرتے تھے وہ بے تکلفی سے جواب دیتا تھا۔ ہم نے کئی بار اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے خامند نے انہیں کہیں دیکھا تھا اور مقتولہ کے قتل کا یہی باعث بنا، لیکن ایوب ہمارے اس شک کو رد کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرے میں اچھی پوزیشن والا ہے اور وہ اپنے طور پر جاسوسی کرے اور اس طرح ہماری مدد کرے۔ میں خود حیران ہوں صاحب، ایوب نے کہا۔ مجھے قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں ادھر ادھر سے مشق لے رہا ہوں کہ مجھے قاتل کا سراغ مل جائے۔ میرا تو خون کھول رہا ہے صاحب۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں آدمی قاتل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور اسے قتل کر دوں۔ اب اپنی بیوی کی بات کرو، فرانسس نے کہا۔ تمہاری بیوی تو یقیناً تمہارے اور مقتولہ کے تعلقات توڑنا چاہتی ہوگی، اس کے بھائی ہوں گے۔ گستاخی معاف صاحب، ایوب نے کہا۔ میں نے آپ کی بات کاٹی ہے۔ میری بیوی کا کوئی بھائی نہیں، وہ 3 بہنیں ہیں۔ میری بیوی اتنی جرأت نہیں رکھتی کہ اس نے قتل کی واردات کرا دی ہوگی۔ ہمارے تعلقات آج کے تو نہیں، یہ 18-19 سال کے تعلقات ہیں۔ اگر میری بیوی اتنی طاقت والی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے یہ کارروائی کر چکی ہوتی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی اسے یہ احساس ہونے دیا ہے کہ میں اس کی بجائے کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے مشورے پر تو نہیں چلنا تھا، نہ ہم نے اس کی ہر بات کو سچ مان لینا تھا۔ ابھی تو ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھیں اور نہ جانے کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ ہم اس شک کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کر رہے تھے کہ قتل کا باعث مقتولہ کے ایوب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ ایوب کو شادرہ اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے۔ عبید کالج نہیں گیا تھا اور اس نے جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ مقتولہ کے والدین ہم سے تھوڑی دیر پہلے شادرہ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مقتولہ کا خامند آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسے ہم نے روک لیا۔ پہلے عبید کو الگ کمرے میں بٹھایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اسے کہا کہ وہ ہمیں کچھ بتائے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ عبید خوبصورت جوان تھا، اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، لیکن وہ اس قدر مغموم تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ماں گھر میں خوش رہتی تھی یا نہیں، اور کیا میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے؟ نہیں جی، عبید نے بڑی مشکل سے اپنے منہ سے یہ الفاظ باہر کو دھکیلے۔ وہ آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے، ٹھیک ٹھاک رہتے تھے۔ شاہدرہ کے ایک آدمی ایوب کو تم جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں بھی آیا کرتا تھا؟ نہیں، عبید نے جواب دیا، وہ یہاں کبھی نہیں آیا، شاہدرہ میں ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ فرانسس نے پوچھا۔ بہت اچھا آدمی ہے، عبید نے جواب دیا۔ میری امی اسے بہت اچھا چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑا۔ اسے رونا ہی تھا، اس کی ماں قتل ہو گئی تھی۔ ہم نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ ایوب کے تعلق اس کی ماں کے ساتھ کیسے تھے، یا کیا اس نے کبھی سنا ہے کہ ان کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ وہ تو ہمیں ایوب خود ہی بتا گیا تھا۔ پھر ہم نے عبید کے چھوٹے بھائی کو بلایا، جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی امی اور ابا آپس میں بہت خوش رہتے تھے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ان دونوں سے کیا کچھ پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا، کیونکہ ان سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہوئی۔ مقتولہ کے خامند سے بھی پوچھ گچھ کی تو اس سے بھی کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ اس سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ایوب اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔
मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, उसने बताया। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था। क्या वो यहाँ भी कभी आया है, मैंने पूछा। यहाँ तो वो कभी नहीं आया, उसने कहा। उसके साथ मेरी मुलाकात शाहदरा में मेरे ससुराल के यहाँ हुई थी और उसके बाद वहीं उससे कभी मुलाकात हो जाती थी। आप उसके मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? हमने कातिल का सुराग लगाना है, मैंने कहा। हमारी नज़रें अंधेरे में कोनों खुदरों तक भी चली जाती हैं। बाज़ औक़ात कोई बिल्कुल ही गैर अहम आदमी आखिर में बड़ा ही अहम निकल आता है। आप परेशान न हों, हमें हर बात पूछनी पड़ती है। एक वो गुनहगार होते हैं जो मासूमियत की कामयाब एक्टिंग कर लेते हैं, और एक वो मासूम होते हैं जो बात ऐसे तरीके से करते हैं कि गुनहगार लगते हैं। तफ्तीशी अफसर में यह काबिलियत होनी लाजमी है कि वो बातों पर न जाए और गुनहगार और मासूम में तमीज़ कर सके। ये तजर्बा मुझे हासिल हो चुका था और सब इंस्पेक्टर फ्रांसिस तो मुझसे भी ज़्यादा बारीक बीन और ज़हीन था। मकतूला के खामन से हमने जो बातें पूछीं और जिस अंदाज से पूछीं, इससे वो बहुत ही परेशान हो गया और आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि ये शख्स कत्ल जैसे इक़दाम की जुर्रत नहीं रखता और उसे अपनी बीवी से दिली मोहब्बत थी। उसने बताया कि मकतूला के साथ उसकी शादी एक दोस्त की मार्फत हुई थी। उसके वालिदैन इसलिए इस लड़की को घर नहीं लाना चाहते थे कि तलाक याफ्ता है और इसका एक बच्चा भी है। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो ये भी कबूल कर लिया कि लड़की तलाक याफ्ता है और उसके बच्चे को भी कबूल कर लिया। उसे अपनी बीवी की खुश मिजाजी और आज़ाद ख्याली अच्छी लगती थी। उसने अपनी बीवी पर पर्दे की और बुर्के की पाबंदी आयद की ही नहीं थी। मैं ये बातें बहुत ही मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद एक बड़ा ही हौलनाक वाक़या हो गया। मैं अब आपको ये वाक़या सुनाऊँगा। हमारा वो दिन वहीं गुजरा। अगला दिन मुखबरों से रिपोर्टें लेने में गुजरा और उससे अगले दिन के गालबन 11 बजे थे जब मुझे बताया गया कि शाहदरा थाने के SHO का फ़ोन है। मैं फ़ोन सुनने लगा। तवक्को ये थी कि वो इस वारदात के मुतालिक कोई बात बताएगा, लेकिन उसने ये खबर सुनाई कि मकतूला के बेटे उबैद को उसके बाप यानी उबैद की मां के पहले खामन ने रिवाल्वर से गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले अपने जज्बात को दबा कर रखते हैं। मेरा रद्द अमल ये नहीं था कि मुझे सख्त सदमा पहुंचता कि पहले मां कत्ल हुई और अब उसका नौजवान बेटा मारा गया है, बल्कि मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ कि अब मकतूला का कातिल भी मिल जाएगा। ये कातिल मकतूला का पहला खामन भी हो सकता था जिसने अपने सगे नौजवान बेटे को गोली मार दी थी। SHO ने बताया कि उबैद को उसके बाप ने अपने घर गोली मारी है और थाने में आकर ये रिपोर्ट दी है कि उसके बेटे ने खुद अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी की है। बाप ने वो रिवाल्वर जिससे उसके बयान के मुताबिक उबैद ने खुदकुशी की थी थानेदार के हवाले कर दिया। थानेदार ने उसे कहा कि अपनी पहली बीवी को भी उसी ने कत्ल किया है और बेटे को भी। शाहदरा थाने का ये SHO एक हिंदू राजपूत था जो तबीयत और मिजाज का बड़ा ही सख्त था। उसने मुझे बताया कि उबैद के बाप से बयान लेने के लिए उसने इस शख्स पर इज़ार आसानी का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी तक इस बात पर कायम है कि उबैद ने खुदकुशी की है। इस वारदात का ताल्लुक उस वारदात के साथ नज़र आता था जिसकी तफ्तीश हम कर रहे थे, लेकिन हम अपने आप ही इस ताज़ा वारदात की तफ्तीश अपने ज़िम्मे नहीं डाल सकते थे। इसके लिए ऊपर के हुक्म की ज़रूरत थी। हम सिर्फ इजाज़त ले सकते थे कि उबैद के कत्ल की तफ्तीश जो SHO कर रहा है उस पर नज़र रखें। सब इंस्पेक्टर फ्रांसिस का मशवरा था कि शाहदरा वालों को तफ्तीश करने दी जाए और देखा जाए कि वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। फ्रांसिस ये भी कहता था कि शाहदरा के थानेदार को मुल्ज़िम पर तशद्दुद करने दो, उम्मीद है वो दोनों कत्ल तस्लीम कर लेगा। मैं पहले भी अपनी कहानियों में बता चुका हूँ कि मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त तफ्तीश का मतलब तफ्तीश ही होता था। मोकमुका या हेरा फेरी नहीं होती थी और ये भी नहीं देखा जाता था कि मुल्ज़िम या मुश्तबा मुआशरे में ऊंची हैसियत रखता है या उसका मकाम क्या है। अंग्रेज़ आफिसर वारदात के बाद इलाका थानेदार से उसका मुल्ज़िम मांगते थे और मुल्ज़िम ना मिलता तो उस इलाके के थानेदार की बदबख्ती आ जाती थी। हमने जब अपने ASP से बात की कि शाहदरा वाली ताज़ा वारदात में दखल दें या ना दें, तो इस अंग्रेज़ SP ने बड़ी संजीदगी से कहा कि तुम लोग कानून और ज़ाब्ते की लकीरों पर चलते रहोगे तो मुल्ज़िम को किस तरह पकड़ोगे। जाओ और देखो कि यही मुल्ज़िम तुम्हारी वारदात का मुल्ज़िम तो नहीं। शोबाज अमीर ज़ादा।
हम अगले रोज़ सुबह शाहदरा थाने पहुँचे। लाश का पोस्टमार्टम गुज़िश्ता रोज़ ही हो गया था और लाश वारसों के हवाले कर दी गई थी। इस घर में 2 अफराद कत्ल हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गोली मकतूल की कनपटी पर इतनी करीब से लगी है कि गोली का धुआं ज़ख्म के इर्द गिर्द जम गया था। दूसरी अहम बात ये मालूम हुई कि यह हिंदू थानेदार मुलजिम के घर गया था और उसने फायर की हुई गोली बरामद कर ली थी। ये गोली भी .38 रिवाल्वर की थी। मतलब यह कि यह रिवाल्वर भी उसी बोर का था जिस बोर के रिवाल्वर से उबैद की मां को गोली मारी गई थी। थानेदार ने एक कार्रवाई फौरी तौर पर कर ली थी। वो ये कि मुलजिम, जिसका नाम मोहसिन अली था, रिवाल्वर के साथ थाने आया तो थानेदार ने उंगलियों के निशान महफूज करने वाली किट निकाली और रिवाल्वर के दस्ते और नाली पर उंगलियों के जो निशान थे वो महफूज करके उसी वक्त मुलजिम की उंगलियों के प्रिंट लिए और फिंगर प्रिंट ब्यूरो के यहाँ भेज दिए। हम जब शाहदरा थाने में पहुँचे तो उसके 10-15 मिनट बाद उंगलियों के निशानों के माहिरीन की रिपोर्ट आ गई। रिवाल्वर पर मुलजिम मोहसिन अली की उंगलियों और एक हथेली के निशानात थे। हम कोई अनाड़ी तो नहीं थे। हम जानते थे कि मुलजिम ये रिवाल्वर घर से यानी मौके वारदात से अपने हाथ में लेकर थाने आया था, इसलिए इसकी उंगलियों के निशानात रिवाल्वर के दस्ते पर लाजमन होने चाहिए थे। लेकिन मकतूल की उंगलियों का ज़रा सा भी निशान रिवाल्वर पर मौजूद न था। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक रिवाल्वर के दस्ते पर तमाम निशानात मुलजिम के थे। हमने एक कार्रवाई ये की कि वो चली हुई गोली यानी बुलेट जो मकतूला की खोपड़ी में से गुजरी और वारदात वाले कमरे से बरामद हुई थी, हमारे कब्ज़े में थी। हमने शाहदरा वाली वारदात की चली हुई गोली भी ले ली और ये दोनों गोलियां और रिवाल्वर बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया। हमारा इस एक्सपर्ट के साथ ताल्लुक़ रहता था। मैंने उसे फ़ोन पर कहा कि ये रिपोर्ट हमें फ़ौरन यानी अर्जेंट चाहिए। शाहदरा वाले थानेदार ने रिवाल्वर का नंबर नोट कर लिया था। उसने मुलजिम से पूछा था कि इस रिवाल्वर का इसके पास लाइसेंस है या नहीं। मुलजिम ने कहा था कि उसके पास ना लाइसेंस वाला कोई रिवाल्वर है ना बिला लाइसेंस। मैंने और फ्रांसिस ने थानेदार का एक काम अपने ज़िम्मे ले लिया, वो ये कि रिवाल्वर का नंबर लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की असलह ब्रांच चले गए और कहा कि रिकॉर्ड देखकर बताएं कि ये रिवाल्वर रिकॉर्ड पर मौजूद है या नहीं। रजिस्टर देखा तो ये नंबर मिल गया। ये लाइसेंस याफ्ता रिवाल्वर था और ये लाइसेंस एक बहुत बड़े मुसलमान ज़िम्मेदार के नाम था और उसका पूरा पता भी मौजूद था। हमने ये पता नोट किया, ये दिल्ली का ही था। हमारी या यूं कहें कि उस वक्त की पुलिस की फ़र्ज शनासी देखें कि हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से निकलकर उस एड्रेस पर पहुँचे। वो ज़िम्मेदार घर पर ही मिल गया। उधीड़ उम्र आदमी था और ख़ासा मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम लगता था। हमने अपना तारुफ कराया और उससे पूछा कि उसका रिवाल्वर कहाँ है। गुम हो गया है, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। 3 दिनों से गुम है। अगर ये रिवाल्वर गुम है तो आपने कुछ किया नहीं? फ्रांसिस ने पूछा। किया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया। मैंने अपनी बीवी और बेटे से पूछा था, उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो मैंने उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। आप क्यों पूछने आए हैं? क्या रिवाल्वर किसी के कब्ज़े से बरामद हुआ है? आपके रिवाल्वर से एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया गया है, मैंने कहा, और आपका रिवाल्वर बरामद कर लिया गया है। कौन कत्ल हुआ है? उसने चौंक कर सोफे पर सीधा होते हुए पूछा। किसने कत्ल किया है? लड़के का नाम उबैद था, मैंने कहा। कुछ दिन पहले बेचारे की माँ कत्ल हो गई थी, उसे भी इसी बोर के रिवाल्वर से गोली मारी गई थी। हाय, उसने अपनी रानों पर दोनों हाथ ज़ोर से मारते हुए कहा। यह लड़का तो मेरे बेटे का दोस्त था। मुझे मालूम था कि इस लड़के की माँ कत्ल हो गई है। मैं उसके जनाजे में भी शामिल हुआ था। लड़का किस तरह कत्ल हुआ है? हमने उसे बताया कि उबैद किस तरह कत्ल हुआ है और ये भी बताया कि मुलजिम कहता है कि लड़के ने खुदकुशी की है। उस पर भी गौर करें, उस ज़िम्मेदार ने कहा। लड़के ने अपने सगे बाप के घर जाकर उसके सामने क्यों खुदकुशी की? ये भी देखें कि उसने अलग कमरे में अपने आप को गोली मारी थी या बाप के सामने। उसके बाप ने अभी तक सही बयान नहीं दिया, मैंने कहा। मेरी एक बात पर भी गौर करें, ज़िम्मेदार ने कहा। मेरा एक बेटा है जो इस वक्त कॉलेज गया हुआ है। उबैद की मेरे बेटे के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। उसे उबैद अपने दिल की बातें सुनाता रहता था। मेरा बेटा ये बातें कभी कभी मुझे और अपनी माँ को भी सुनाया करता था। इन बातों से मालूम होता था कि उबैद ज़िंदगी से तंग आया हुआ था। वो मेरे बेटे का क्लास फेलो भी था। वो कई बार यहाँ आया था और 2-3 बार मैंने उसे बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था
कि वो इसी उम्र में अपने आप को रोग ना लगा ले, क्योंकि इसके सामने बड़ी लंबी उम्र पड़ी है और वो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करे। लेकिन ये मैंने भी देखा कि लड़का मगमूम सा रहता था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है लड़के ने खुदकुशी की हो। क्यों ना हम ये बातें आपके बेटे से पूछें, फ्रांसिस ने कहा। आपका बेटा किस वक्त घर आएगा? 1 घंटे तक आ जाएगा, ज़िम्मेदार ने जवाब दिया। क्या रिवाल्वर घर से गुम हुआ है? लेकिन जनाब, मैंने पूछा, आपका रिवाल्वर वहाँ तक किस तरह पहुँच गया? क्या रिवाल्वर घर से गुम हुआ है या आप कहीं बाहर ले गए थे और वहाँ भूल आए? मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, उसने कहा। मेरी हैसियत और पोजीशन का ख्याल रखें, मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने आपको बताया है कि मेरा बेटा इकलौता है। कुदरती तौर पर हमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने तो उसे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। ये मेरी गलती और मेरा जुर्म ही सही, लेकिन सच ये है कि मेरा बेटा कभी कभी रिवाल्वर अपने साथ ले जाता है। वो सिर्फ शोबाजी और नुमाइश के लिए ऐसा करता था। उसने कभी गोली फायर नहीं की। मैंने कई बार इसकी माँ से कहा है कि इसे रिवाल्वर दे दिया करो, गोलियां ना दिया करो, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में माँ बेटे की ये फरमाइश भी पूरी कर देती है कि बेटा रिवाल्वर मांग रहा है। माँ को ये अच्छा लगता है कि बेटे के पास रिवाल्वर है। कई दिन पहले भी वो रिवाल्वर ले गया था और अब मैंने देखा तो रिवाल्वर गायब था। मैं तसल्ली में रहा कि बेटा ले गया होगा, लेकिन उससे पूछा तो उसने कहा कि वो नहीं ले गया। मुझे अपने बेटे से ये तवक्को नहीं कि वो झूठ बोलेगा, क्योंकि हम उसकी हर जिद और हर फरमाइश पूरी करते हैं। मैंने फ़ौरन थाने जाकर रिवाल्वर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अब आपने बताया है कि मेरे रिवाल्वर से एक इंसान की जान ज़ाय हो गई है, तो इस जुर्म में मुझे भी शामिल किया जाएगा कि मैंने ऐसी बेएहतियाती से रिवाल्वर रखा हुआ था कि कोई शख्स उतार कर ले गया और अपना इरादा पूरा कर लिया। मैंने आपसे सच बोला है, इसलिए आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे इस ज़िल्लत से बचा लें। इस हैसियत के ज़िम्मेदार अमूमन बड़े रौब से रहते और रौब से ही बात करते हैं। ये शुरू से होता आया है और होता चला जा रहा है। इन लोगों ने अपना असर व रसूख भी बना रखा होता है। इस दर्जे के ज़िम्मेदार अपने आप को नवाब और महाराजे समझते थे और समझते हैं, लेकिन मैंने इस शख्स में शाइस्तगी और वक़ार सा देखा, और मैंने ये भी देखा कि वो अपनी क्लास के दूसरे ज़िम्मेदारों और जागीरदारों की तरह खुशामदी नहीं था। पुलिस के अफसरों के आगे तो ये लोग रकू की पोजीशन में चले जाया करते थे। मैंने फ्रांसिस की तरफ देखा तो फ्रांसिस ने मुझे हल्का सा सर का इशारा दिया, जिसका मतलब ये था कि इस शख्स की इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे या इसके बेटे को इस जुर्म में शरीक ना करें। उसने बड़ी ही पुरतकल्लुफ़ चाय से हमारी तवाज़ो की। हम चाय पी रहे थे कि उसका बेटा आ गया। बाप ने उसे बुलाकर हमसे मिलवा दिया। वो भी उबैद की तरह खूबसूरत लड़का था। हमने उसके बाप से कहा कि ये खाना खा ले, फिर हम उसे अलग बिठाकर पूछेंगे। लड़का खाना खाकर आ गया तो मैंने उसके बाप से कहा कि वो इसे हमारे पास अकेला बैठने दे। बाप उठ खड़ा हुआ। शर्फी बेटा, बाप ने बेटे से कहा, ये जो कुछ भी पूछें बिल्कुल सच सच बताना। तुम सच नहीं बोलोगे तो भी इन्हें कहीं ना कहीं से सच्ची बात मालूम हो जाएगी। फिर ये तुम्हारा जुर्म होगा कि तुमने पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की। बात कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, सच बोलना। तुम पर कोई इल्ज़ाम आया तो वो मैं इन साहिबान से माफ़ करा लूँगा। बाप अपने बेटे को ये हिदायत देकर कमरे से निकल गया। लड़के का नाम मुशर्रफ था और उसे शर्फी कहते थे। अपने अब्बा जान का रिवाल्वर कहाँ फेंक आए थे, मैंने उससे पूछा। मैं, उसने हैरान सा होकर कहा, मैं कहाँ ले गया था। हमने उसे कहा कि उसका बाप हमें बता चुका है कि वो रिवाल्वर निकाल कर ले जाता है और शोबाजी करता है। मैंने उसे ये भी कहा कि वो सच बोले। अब्बा जान ने आपको ठीक बताया है, शर्फी ने कहा। मैं कभी कभी रिवाल्वर अपने साथ ले जाता था, लेकिन अब मैं नहीं ले गया था। मालूम नहीं कौन ले गया है। हमने अभी एक सवाल रिज़र्व रखा हुआ था। वो ये था कि ज़िम्मेदार का कोई ऐसा नौकर होगा जो रिवाल्वर चोरी करके ले गया हो। पहले हम इस लड़के से पूछना बेहतर समझते थे। एक ये बात भी जहन में रखें कि इस लड़के के बाप ने हमारे दिलों में एक शक पैदा कर दिया था। वो इस तरह कि उसने कहा था कि उबैद बहुत ही मगमूम रहता और कभी रो भी पड़ता था। ये शक जहन में रख कर हमने सोचा कि पहले शर्फी से ये पूछा जाए कि उबैद की जहनी और जज्बाती हालत क्या थी।
चलो रिवॉल्वर की बात छोड़ो, मैंने कहा। उबैद तुम्हारा बड़ा ही गहरा दोस्त था, वो कत्ल हो गया है या उसने खुदकुशी कर ली है। मैंने आज सुबह यह खबर अखबार में पढ़ी है, शर्फी ने कहा। वो तो मेरा इतना गहरा दोस्त था कि मेरे साथ दिल की हर बात करता था। हमें इसकी हर बात बताओ, मैंने कहा। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उसने खुदकुशी की है या उसे बाप ने कत्ल किया है। शर्फी ने हमें उबैद की बातें सुनानी शुरू कर दी। ये मैं इख्तसार से अपनी ज़बान से सुनाऊंगा। रिवॉल्वर किसने दिया? उबैद और शर्फी पहली बार कॉलेज में मिले थे जब वो फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए थे। चंद दिनों में ही इनकी दोस्ती पक्की हो गई। अब दोनों सेकंड ईयर में थे। उबैद शर्फी को बताया करता था कि वो बहुत ही बेचैन और बेआराम रहता है। वो कहता था कि इसकी माँ और बाप ने उसकी ज़िंदगी में से खुशियाँ निकाल ली हैं। वो 3 साल का था जब उसकी माँ घर आ बैठी और उसे बाप से अलग कर दिया गया। बाप उसे महीने में एक बार थोड़ी सी देर के लिए मिला करता था। बाप उसके लिए खिलौने और तोहफे लाता था। उबैद को अपने सगे बाप के साथ बहुत ही प्यार था। वो जब स्कूल में दाखिल हुआ तो उसका शऊर बेदार हो चुका था। वो अब अच्छे बुरे को पहचानता था और उसके एहसासात पूरी तरह बेदार हो गए थे। कभी कभी वो माँ को बताए बगैर अपने बाप के पास चला जाता था। ये उस वक्त होता था जब उसकी माँ शाहदरा गई हुई होती थी। उस वक्त उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसका सौतेला बाप कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसके अपने सगे बाप की तरह अच्छा भी नहीं था। ये बाप उसके साथ इस तरह प्यार नहीं करता था जिस तरह उसका सगा बाप किया करता था। फिर इसका पहला सौतेला भाई पैदा हुआ तो उबैद ने देखा कि सौतेला बाप अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्यार करता था और उसके दिल से उबैद का प्यार निकलता जा रहा था।